Welcome back, guys. Myself Piyush Goyal, company secretary from Jaipur, and in this video we are going to discuss if you are exporter and export the sum of goods or services, and on that export you have required to claim the GST refund. So in this video we will cover the how to file the form refund for claiming the GST refund or input tax credit which is paid at the time of exporting the गुड्स राइट। तो ये वीडियो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, मैं आपको प्रैक्टिकल स्टेप भी यहाँ पे बताऊंगा और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट क्या है वो भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको एक ही वीडियो में सारी जो डाउट्स हैं यहाँ पर आपकी वो क्लियर हो जाएगी। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप बिल्कुल इसको शेयर कीजिए आप, और इससे दूसरों को भी बहुत काफी फायदा होगा। और चैनल पे नए हैं तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं जिन पर वीडियो डालूंगा उनका नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि जीएसटी रिफंड किन किन सिचुएशंस के अंदर अराइज होगा। तो रिफंड जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर कोई पहले पड़ी है आपकी तो वो यूज नहीं की, उस वजह से जीएसटी रिफंड आपका आ सकता है। गुड्स एंड सर्विसेज अगर आप जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पर आपका रिफंड बन सकता है। ठीक है, या फिर आपने जीएसटी का पेमेंट जो है एरर और इनएडवर्टेंस की वजह से कर दिया तो उस वजह से जो है ये जीएसटी रिफंड आ सकता है। टैक्स फ्री सप्लाईज एंड रिटर्न्स जो है आपने की है तो उस वजह से जो है वहाँ पर आप जीएसटी रिफंड ले सकते हो। तो ये रीजन होते हैं। तो पर हम आज स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट किया है आपने, वहाँ पर आप अपना जो है जीएसटी रिफंड किस तरीके से क्लेम करना है। रिफंड ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट यूज, ये तो हम बात आज नहीं करने वाले, हम केवल एक्सपोर्ट स्पेसिफिक करने वाले हैं। जब हम गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं फ्रॉम इंडिया तो ये एक्सपोर्ट ड्यूटीज जो होती है इस पर एग्जम्प्ट होती है, तो ये आपको जो है रिम्बर्स हो जाती है एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। When exporting goods or service outside the India that are subject to the export duties, the exporter has to initially claim the input tax credit for input tax paid, export the finished goods item after paying the import tax, and then claim a refund for the duty paid during the export process. ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला है। अब हम देखेंगे रिफंड फॉर प्री पेमेंट ऑफ मतलब हाउ टू फाइल द फॉर्म RFD01 फॉर क्लेमिंग द GST रिटर्न, राइट। So first of all, you have to click the service page on GST website and choose the refund, and then select the refund pre-application form option and enter the data was requested on refund pre-application form page that shows on click submit, and additionally there will be submission confirmation shown on the screen, right. The following details should be filed: category of business, whether it's a supplier, it's a trader, vendor, exporter or service supplier. The second information which is required to be disclosed in the application is date of issue, IEC issuer. Date of import export certificate administration is required to be provided by someone requesting repayment for export. The primary certified signatory Aadhaar number must be provided. Once verified, submit the form and you will receive a ARN for future reference, right. Steps to apply RFD01 for different GST refunds. तो मैंने आपको आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप जो है एक्सपोर्ट का जीएसटी रिफंड ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया आपको रिफंड पेज पे जाना है जीएसटी की वेबसाइट पे और एप्लीकेशन फॉर रिफंड पे क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन द रिफंड एप्लीकेशन आफ्टर सेलेक्टिंग द काइंड और रीजन फॉर रिफंड, एंड देयर आफ्टर इन द डायलॉग बॉक्स द रीड्स इफ यू वांट टू फाइल ए नील रिटर्न, राइट, क्लिक सेलेक्ट यस और नो। After selecting the time period for which the reimbursement is to be applied, according to the sort of refund you have selected in previous step, fill out the required data on the screen that appears. Verify the entered data and supporting documents. It cannot be changed later. After verification, sign the form electronically using DSC method. This is the whole process for filing the RFD01 for claiming the GST refund for the export, right. अब हम कुछ important provisions को भी हम यहाँ पे जो है डिस्कस करना जरूरी है कि अगर आप जीएसटी रिफंड के लिए फाइल कर रहे हैं, एक्सपोर्टर हैं, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका रिफंड का अमाउंट 1000 से कम है तो आपको यहाँ पे कोई भी रिफंड मिलने वाला नहीं है, यानी रिफंड क्लेम करने के लिए आपका जो रिफंड अमाउंट है वो 1000 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका जो रिफंड अमाउंट है लेस देन 5 लाख, देन इस केस में आपको जो है सेल्फ डिक्लेरेशन बनाकर आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर सेल्फ डिक्लेरेशन आपको करके वो आप फाइल कर सकते हो। ठीक है, अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो उसके अंदर जो है आपको यहाँ पर सर्टिफिकेशन लेने की नीड होगी। तो एक सेकंड प्रोविजन यहाँ पर ये भी है। तो आपको मुझे लगता है कि समझ में आया होगा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
एंड यू इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू द इनकम टैक्स, जीएसटी, ट्रेडमार्क, कंपनी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो बिल्कुल आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप जो है आपका इस टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।